Who is speaking to whom? What is the context? In the beginning of third canto, all the demigods, Indra, Chandra, Varuna, they all go to Brahma. Why they had gone? The reason is that everywhere darkness was there in the whole universe. For how much time? 1 hour, 2 hour, 1 day, 2 day. For how much time? 100 celestial years. एक आध दिन के लिए सूर्य नहीं निकलता है ना, ठंड में कभी होती है यहाँ पे जयपुर में, तो 2-3 दिन ही निकलता है तो थोड़ा बेचैनी सी हो जाती है, पर 100 दिव्य सालों तक. एंड हु दे आर डेमिगॉड्स? डेमिगॉड्स कौन है? दे आर द कंट्रोलर, लोकपालास. दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल. They control the rains, they control the wind, they can control everything. Still, beyond their understanding, why this is happening, darkness, we do not want. So the darkness was, thick darkness spread across, and they waited. Ultimately, they all went to Brahma to understand why it is happening this. तब ब्रह्मा जी start speaking to them, what is the reason? Then flashback, Brahma is narrating this pastime of Kumaras going to the Vaikuntras. Now, Kumaras were the which realized? Brahman realized. Brahmavadis. What is the difference between Brahmavadis and Mayavadis? So we must have a very clear understanding. What is the difference? Mayavadi, Krishna Aparadhi. Brahmavadi is not Aparadhi. So, Brahmavadis, and what is Brahman? What is the Brahma Jyoti? Is effulgence of the Lord. It's also, it's not ordinary. What is the shining coming from the Lord's body is a Brahma Jyoti, is not ordinary. Brahmeti, Paramamiti, Bhagavan iti sabdhati, Vadanti tat tat vidastattam yati gyanam adavayam. Brahma Jyoti is not, is linked with the Krishna. So, Brahman, Paramatma and Bhagavan. So, they are all very spiritually elevated souls. Those even Brahmavadis, Paramatmavadis or Bhagavanvadis, whatever in that sense. So, Brahmavadis, they know Brahman is supreme. Brahman is God. For them, Brahman is the topmost, he is a God. And they surrender to the Brahman. Some yogis, they call Brahmavadi. Yogis thinks Paramatma is supreme. So they call yogis in that sense, Ashtanga yogis. Further, some, they come, Krishna is the supreme. So they call devotees. Now, what is the Mayavadis? They think Brahman is supreme and I am Brahman. I am God. Namo Narayana. They think I am God. But Brahmavadis don't think I am God. Supreme is Brahman and I am subordinate to the Brahman. So that's called Brahmavadis. Or here Mayavadis, they think I am God. So anyway, so the Brahmavadis, even the Kumaras, they are very exalted. How could they can go to the even Vaikuntha?
with the same body, just walking here and there. Now suddenly they reach to the Vaikuntha planet. Or I would say the gate of Vaikuntha. Prabhupada is clarifying here. So Brahmavadis, Prabhupada explains many places. जो ब्रह्म सुख है, is not ordinary. Much exalted than any material happiness. So even they were Brahman realized they were not this thing, but they are very exalted because they experience that Brahman Sukha. So it says huge ocean of material happiness cannot be compared with one drop of Brahma Sukha. So they all rejected any material happiness. That is the reason they could reach to the spiritual sky. Otherwise no one can reach to even spiritual sky. Unless we get convinced completely to ourselves, and not only convinced and reject. Like Yamunacharya says, we spit on the thought. The topmost happiness called sex life, methony in this world, but they spit on a thought even. It's not simply some act of some physical act, it's actually the realization. So that way they are very elevated. Kumar is one of the Mahajanas. Out of 12 Mahajana, one of Kumaras is there. And we will discuss why they are Brahmavadis. One of the Vaishnava Samprada out of 4 is led by the Kumaras. Nimbarka Sampradaya. And also even like Shukdev Goswami. We hear or we read. He also is the Brahmavadis. But again he is one of the Mahajanas, right? Both are Mahajanas. So they are not ordinary, they are very great. And also sometime Krishna, the Lord, makes some nimit instrument to convey, to broadcast the principle of bhakti, the power of bhakti. So Kumaras and Sukdev Goswami, they're very exalted, the Mahajanas. So anyway, so this Kumaras, so the Brahma is narrating to demigods. ब्रह्मा जी किसको बता रहे? देवताओं को बता रहे. तो जब वो गेट पे पहुंचे तो थोड़ा सा मतभेद हुआ, वहाँ पे कुछ हलचल हुई. भगवान को थोड़ा पता चला कुछ गड़बड़ हो रही है, तो भगवान वहाँ पे अपने कुछ लक्ष्मी जी के साथ विद एसोसिएट्स भगवान वहाँ रही. जब कोई भक्तों में लड़ाई हो जाती है तो कुछ अथॉरिटी वगैरह पहुँचती, क्या हो गया थोड़ा सा, तो वहाँ भगवान पहुँचे देखने के लिए हो क्या रहा है. तो जब भगवान आ रहे थे तो भगवान के चरणों में तुलसी पेटल्स ऑफ तुलसी लीव्स थी, और वो जिसमें केसर के साथ चंदन लगाता. तो जैसे ही तुलसी की सुगंध, द अरोमा ऑफ तुलसी लीव्स, जैसे ही कुमारों के नासिक से गई तो they became devotees. Even though they were before the Brahmavadi, they bhakta ban jate. So the power of Tulsi aroma is very powerful. So that's Sarija Prabhupada worshipping the Tulsi is very powerful for our spiritual advancement.
इसका जिक्र श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में करते हैं कि हरिदास ठाकुर जी जब भगवान का नाम जप करते थे तो तुलसी पौधा सामने रख के फिर बैठ के पढ़ते थे। इवन बाद में जो प्रोस्टिट्यूट जो भक्त बन गई थी हरिदास ठाकुर की कृपा से, उसको ही बोला था आप तुलसी का पौधा लगाइए, उसके सामने हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। सो विल नॉट गो इन डिटेल, बट तुलसी इज वेरी पावरफुल. इवन वर्शिपिंग और सर्विंग द तुलसी हैज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब वो वहाँ पहुँचे, हम रिपीट कर रहे हैं बट स्टिल टू ब्रिंग द राइट कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ हुआ, उन्होंने गुस्से में क्या कर दिया, उनको श्राप दे दिया. किनको? जय विजय को. श्राप देने के बाद जय विजय ने क्या बोला? आपने श्राप तो दे दिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब हम भौतिक दुनिया में आए तो हम भगवान की स्मृति बनी रहे, हम भगवान को नहीं भूलें. दे रिक्वेस्ट थी कि आपने मुझे कर्ज तो कर दिया है, हमको भौतिक दुनिया में आना है, इवन इफ बिकम डीमन डज नॉट मैटर, तो भगवान की स्मृति हमको बनी रहे. सो इससे हमको पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा. प्रभुपाद जी बोलते हैं, when you remember Krishna, you are in spiritual world. प्रभुपाद जी बोलते हैं, हरे कृष्णा मंत्र जब ध्यान से जब करते हैं, we transmigrate all the lower modes, all the 3 modes. हम शुद्ध सद्गुण में आ जाते हैं जब भगवान का नाम जप करते हैं. तो remembering Krishna is very very important. Always remember Krishna, never forget. तो उन्होंने एक चीज मांगा भगवान कि हमको कर्ज कर दिया है, मुझे इतना जाना है, ठीक है, वी आर रेडी टू गो, पर आपसे एक आग्रह है कि हम भगवान की विस्मृति ना आए, भगवान को हमेशा याद रखें. तब कुमारराज ने ऐसा सुना तो उनका दिमाग हिल गया, बोला हमने कुछ गलती कर दिया यार. व्हाट ए ग्रेट सोल. वो बोले हमको इट्स लाइक ए हेल्प फॉर दैम. मतलब आध्यात्मिक दुनिया से और डीमन बन के भौतिक दुनिया में आना, तो बोले एक ही चीज़ मांग रहे हैं हमको, भगवान की. तो भगवान से कितना लगाव है इनको. देन कुमारों को रियलाइज किया कि वी मेड ए मिस्टेक. और जब भगवान सीन में आए तो कुमारराज थोड़ा डरे हुए थे कि उनसे गलती हो गई है. तो देवर ऑल्सो, तो भगवान को बोले कि भगवान हमसे थोड़ा गलती हो गया है, जो आप दंड देंगे हम इनको स्वीकार करते हैं. यू ऑल्सो एक्सप्रेस वॉलंटरी. यदि हमसे कुछ गलती हो तो वॉलंटरी भी शुड एक्सेप्ट. और भगवान बहुत दयालु है, भगवान माफ कर देते हैं. वॉलंटरी इज नॉट समथिंग ही वाज डिफरेंट. नो स्टॉप, वी डन राइट रॉन्ग. नो, ये बात नहीं. भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है. आपके जो पार्षद हैं, जो आपके यहाँ वैकुंठ पार्षद हैं, उनको हमने कर्ज कर दिया. तो कुमारराज जी बोलते हैं हमको ही माफ़ कर दीजिए, हमको जो दंड देंगे हम स्वीकार करते हैं. भगवान को बोल रहे हैं. कौन? कुमारराज. So that degree of honesty, that degree of the humility is there with the great devotees. They are very honest, they are very humble. वही बोलते हैं भगवान कुछ भी दंड दे दो पर हम आपको ना भूलें. सेम थिंग. स्मृति भगवान की बहुत बहुत सी हम wherever you are remembering Krishna, we are in spiritual world. इसलिए ना जब राम चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था रामानंद राय से, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मिजरी,
सबसे बड़ा दुख क्या है? क्या बोला था? व्हाट इज आंसर? भक्तों से विरह, भक्तों का संग छोड़। कि भक्त रहेंगे ना, फोर्सफुली आपको भगवान याद कराते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो भक्तों से विरह है, वो एक सबसे बड़ा मिजरी है इन दिस मटेरियल। समहाउ इफ वी लिव, भक्तों के साथ रहेंगे तो भगवान हमको हमेशा याद रखेंगे। प्रभुपाद जी एक बार साउथ अमेरिका में एक लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम भजतन्ते कलेवरम तम तम एविति कौन्तेय सदा तत भावता। यदि मृत्यु के समय यदि हम भगवान को, कृष्ण को याद करेंगे तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो वन एल्डरली लेडी, साउथ अमेरिकन लेडी, शी वाज अटेंडिंग, शी रेज्ड द हैंड, स्वामी जी आई हैव वन क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। स्वामी जी हमने कृष्ण को तो ज़्यादा पढ़ा नहीं, सुना नहीं, पता नहीं कृष्ण क्या होते, पर अभी हम थोड़े दिन से आपका सुनने के लिए रोज आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। सो मृत्यु के समय यदि हम आपको याद करेंगे तो क्या होगा? Prabhupada, wait a moment, and Prabhupada says, we'll go back to Godhead. तो भक्तों को याद करना, स्पेशली द प्योर डिवोटीज, live in association is an unparalleled thing. इसलिए देवता लोग तरसते हैं to take birth in the भारत भूमि। इसी भारत भूमि में हमने जो जन्म लिया है, हमको इसका वैल्यू नहीं है ना। चैतन्य महाप्रभु ग्लोरीफाइज ना, भारता भूमि ले हेला मनुष्य जन्मया, जन्म सार्थक कर कर पर उपकार। तो हम अपना जीवन को सार्थक करना। वी हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हमने भारत भूमि में जन्म लिया है और हम श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बने। सो वी हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुमारास ने भगवान से ऐसा बोला। भगवान ने बोला डोंट वरी। भगवान क्या बोलते हैं? दिस वॉज माई प्लान। ठीक है ना, भगवान बोलते हैं जी हमारी प्लान था, जी हमारी इच्छा था। नीदर बोथ, इधर कुमारास और जय विजय, दे कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। सो दिस इज द प्लान ऑफ द लॉर्ड। और भगवान का जो प्लान है की वजह से ब्रह्मा जी बता रहे हैं किनको? डेमिगॉड्स को, देवताओं को, कि जो भगवान का प्लान था, इसलिए भगवान के जो द्वारपाल हैं वो अभी किसके गर्भ में है? वो दिति के गर्भ में। एंड कश्यप मुनि ने दिति को बोल दिया था कि अनटाइमली यू हैड आस्क्ड मी टू एसोसिएट विथ यू, यू फोर्स मी ना, वी रेड कि नाउ ही सेड नो, दिस नॉट द राइट टाइम टू do sexual intercourse, this is not right time. But somehow she was so excited, this thing agitated, कि उन्होंने फोर्स किया, was कश्यप मुनि। and so हिरण्याक्षन, हिरण्यकश्यप उसके घर में थे। और उसके बाद आफ्टर एसोसिएटिंग, कश्यप मुनि ने बता दिया कि the great demon is going to come now। और वो
हमको आपको इसको नहीं, इवन देवताओं को भी कष्ट देंगे, भारी पड़ेंगे उनको। शी वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड दीदी। फिर बाद में सांत्वना दिया था। कैसे सांत्वना दिया था? उनका जो ग्रैंडसन होगा वो भगवान का महाभागवत होगा। सो सी हैड अ लिटिल सोल, प्रहलाद महाराज। एनीवे, और दिति इज नॉट ऑर्डिनरी, शी इज ए वाइफ ऑफ अ ग्रेट सेज कश्यपा एंड डॉटर ऑफ Daksh Maharaj. She is very exalted. She is a great Vaishnavi. That's it. But भगवान का प्लान था, the desire of Krishna. और ब्रह्मा जी बोले क्योंकि भगवान की इच्छा है। और अच्छा, और when she conceived दोनों को, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को, so उसको पता था वो आएंगे तो बहुत उपद्रव करेंगे पूरे ब्रह्मांड में, देवताओं को भी नहीं छोड़ेंगे। तो सी वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल, नॉट टू गिव द बर्थ। इसलिए 100 वर्षों तक सी वॉज होल्डिंग कि इफ दे कम, बिकॉज सी नोज कि जैसे ही वो लोग आएंगे तो she was controlled. That's the reason for 100 years she could able to control. But later, and how long can he be controlled? That ultimately she delivered. और जैसे ही जन्म दिया तो क्या हुआ? You remember? As soon as they took birth, they were small children. What happens to them? Immediately they become elder or young person, immediately. They did not have any childhood pastime. जैसे ही उनका this very special so they immediately became and they start disturbing the people. तो ब्रह्मा जी ने बोला जी भगवान का प्लान है, हम कहते आप क्या, हम भी इसको कुछ नहीं कर सकते, बियॉन्ड माई कंट्रोल, बिकॉज दे हैड कम विद द डिजायर ऑफ कृष्णा। एक्चुअली ऐसा बोला गया है कि वो इंद्र को, चंद्र को, सूर्य को, जो पूरे लोकपाल है, जेब में रख के घूमता था मतलब उनका, they were so exalted, please understand, they were beyond the control। बोलते यमराज को तो रस्सी से बांध के अपने कोठरी में बंद कर दिया था। So he was so exalted because they were not ordinary। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं हम लोगों के किसी के हाथ में नहीं आने वाले ये लोग, हम कुछ नहीं कर सकते डार्कनेस की बात, ये तो ऑल प्लान्स ऑफ कृष्णा। सो कृष्णा डिजायर इज सुप्रीम। भगवान की जो इच्छा है वो सर्वोपरि होती है। इवन द डेमिगॉड्स कैन नॉट counteract or challenge। जब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं उनकी इच्छा क्या है? पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र होवो मोरो नाम। Desire cannot be counteracted। Already Srila Prabhupada is also coming as a desire of Krishna। Prabhupada is spreading the glories of holy name, also desire of Krishna। So no one can check। So Prabhupada ji always बताते थे कि this Krishna conscious movement, Hare Krishna movement को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। Only thing when you fight internally, then so like Prabhupada ji narrate करते हैं case of यदुवंश को ना, internally they fought and they vanished, but यदुवंश nobody can stop।
So that's was anyway, that also was a plan of Krishna. So fighting of Yaduvanshi. But still in this case, I said, so Chaitanya Mahaprabhu said, Prativiti Ache Nagaradigram, this is going to happen. No demon, for even the demigods, big demigods cannot stop. Anyway, they will not stop, they are the devotee of Krishna. But still, just to see, no one can stop, can become a hindrance into the desire of the Lord. Or so this is happening on the entrance. और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आफ्टर द स्पीकिंग एट द डोर ऑफ बैकुंठा, आफ्टर द स्पीकिंग एट द डोर ऑफ बैकुंठा, द लॉर्ड रिटर्न टू हिज अबोर्ड. तो बैकुंठा से बाहर आए भगवान. भगवान फिर अपने धाम को, अबोर्ड को चले गए उनसे बात करके. तो प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर रहे हैं कि दे हैव नॉट इंटर्ड. इट इज क्लियर फ्रॉम दिस वर्स दैट ऑल द इंसिडेंट्स टुक प्लेस एट द एंट्रेंस ऑफ बैकुंठ लोका. इन अदर वर्ड्स, द सेजेस वर नॉट एक्चुअली विद इन द बैकुंठ लोका, बट वर एट द गेट. किसी आप घर में जाए, घंटी बजाई, खोला, गेट पे बात किया, बंद कर दिया, तो आप अंदर तो नहीं गए, बाहर ही से उसने आप खोल दिए चले जाओ. तो वैसे ही दे आर ऑन द गेट, दे हैव नॉट एंटर्ड. एंड इट कुड बी आस्क्ड, हाउ कुड दे रिटर्न टू मटीरियल वर्ल्ड इफ दे एंटर्ड बैकुंठ लोका? बट फैक्चुअली दे डिड नॉट एंटर, देयरफॉर दे रिटर्न. प्रभुपाद जी फर्दर एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, बट इट्स नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन. लेट्स अंडरस्टैंड. देयर आर मेनी सिमिलर इंसिडेंसेस वेयर ग्रेट योगीज एंड ब्राह्मणा, by the dint of their yoga practice, have gone from material world to the Vaikuntha. Who had gone? Our famous angry sage Durvasa. That Amrish Maharaj का केस. Then वो वापस क्यों आ गए? वो तो गए थे, वैकुंठ गए थे कि नहीं? He has gone or no? Has gone. Then why he returned? क्योंकि इच्छा नहीं थी वहां रुकने की. एक्चुअली वो गए कैसे थे? आई फर्दर हम नीचे पढ़ेंगे. प्रभुपाद बहुत वेरी नाइस पर प्रभुपाद इज क्लियरली मेनी पॉइंट. बिकॉज unless we go to Vaikuntha with a desire to serve the Lord, we cannot stay. We have to come back. दुर्वासा जी तो पहले पता है, वो सुदर्शन जी आ रहे थे पीछे, तो पहले तो भागे यहाँ वहाँ, पूरे देखा कहाँ से बचेंगे. फिर बाद में कहाँ पहुँचे? कैलाश पर्वत पहुँचे. शिव जी को बोला थोड़ा सा पीछे कुछ आ रहा है, थोड़ा हेल्प करिए. शिव जी ने वहाँ भगाया, बोला अरे ज़्यादा रुक जाओगे तो हमारा कैलाश चला जाएगा. वहाँ से भागे भागे भागते भागते ब्रह्मा जी के घर पहुँचते हैं, ब्रह्मलोक पे. तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं थोड़ा हेल्प करिए, पीछे कुछ आ रहा है. तो ब्रह्मा जी ने बताया अरे यार हमारा ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाएगा सुदर्शन का इतना तेज से. तब तो एक्चुअली व्हाई ही वेंट टू बैकुंठा? प्रोटेक्ट देयर बॉडी, शरीर बचाने के लिए. आत्मा का तो वैसे कुछ होगा नहीं. तो भगवान के पास गए, पर उनका इच्छा क्या था भगवान के पास? So just protect his body. For that too also sense gratification के लिए. भक्त का शरीर, he is not a devotee in that sense. जो भक्त का शरीर होता है, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि इज नॉट ए मटीरियल. ईयायस हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलसौ अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते. जिसने अपना मनसा
माइंड को, अपने कर्मणा, अपने कार्य को, और गिरा मीन्स अपनी आवाज को भगवान की सेवा में लगा दिया है, तो यहाँ पे रहते हुए भी वो मुक्त आत्मा है। तो दुर्वासा मुनि क्यों वापस आए? क्योंकि he had no desire to serve the Lord. वहां गए, उनको होप थी कि एटलीस्ट विष्णु हमारी प्रोटेक्ट कर देंगे। भगवान ने भी हाथ उठा दिए। अहम भक्त पराधीनो है अस्वतंत्र इव दुजा साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तियो भक्तजन प्रिया। भगवान बोले सुदर्शन, तुमको लग रहा हम कंट्रोल करें, हम कंट्रोल नहीं कर रहे, वो तो बोले हमारे भक्त लोग कंट्रोल कर रहे। So then he said, you go back to the Amrish Maharaj, ask forgiveness. तो यदि हमने किसी भक्त का अपमान किया है, दिल दुखाया है, there's only way to ask forgiveness from that devotee. Devotees are very merciful Vaishnava. They don't take it. जब वापस आए, आपने पढ़ा होगा, अमरीश महाराज कहाँ पे थे उस सेंस में? कितने साल तक हमारे दुर्वासा जी भागते रहे? 1 year। और 1 साल तक अमरीश महाराज उसी स्थिति में वेट किया। He did not had anything for 1 year। कुछ खाया नहीं 1 साल तक। उनको लगा कि हमने किसी एक बड़े ब्राह्मण का हमने अपमान कर दिया, अपराध कर दिया। एक्चुअली उनका अपराध किया था, पर जो उनको लग रहा था हमसे अपराध हो गया है। कैन यू सी द एक्सॉल्टेड पोजीशन? हमसे अपराध होता तो हम क्लैरिफाई करते, हमसे नहीं, उससे अपराध हुआ। तो यहाँ से तो उनको अपराध किया है और ऊपर उनको लग रहा है हमसे अपराध हो गया ऐसा। और जब तक उनके साथ कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ, वो कुछ खाए नहीं, 1 साल तक वेट करते रहे। द सेम भागवतम सेज। एंड व्हिच प्लेस ही वाज देयर? व्हिच प्लेस अमरीश वाज देयर? वृंदावन में, मथुरा में। He had come for एकादशी फास्टिंग के लिए वृंदावन गए थे वो। तो उसका कहीं जिक्र आता है, डिटेलिंग आता है एक जगह। एनीवे, तो so the glories of the Vaishnava devotees, they are unparalleled. और जब तक हमारे अंदर शुद्ध भक्ति का संचार नहीं हुआ हृदय में, न अन्य अभिलाषता से, तब तक we cannot really experience the Vaikuntha in our heart, in our where we live on. इसलिए 6th कंटूर के बिगिनिंग में बताते हैं, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव पारायणा अघम धुन्वन्ति काष्णेया निहारम इव भास्कर। भास्कर मतलब सूर्य, निहारा मीन्स फॉग, कोहरा होता ना। सो कोहरा कितना भी डेंस हो, सूर्य आता है तो सब कोहरा चला जाता है। उसी का केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव पारायणा। केवल्या भक्ता मीन्स शुद्ध भक्ति। श्री गुरु चरण पद्मा केवल्य भक्ति। केवल्य भक्ति में शुद्ध भक्ति जैसी आती, अघम धुन्वन्ति काष्णेया। आपकी जो शुद्ध भक्ति में इतनी ताकत है, आपके पापों को नष्ट करने के साथ साथ पाप करने की टेंडेंसीज को भी नष्ट कर देती है। पाप से मुक्त होना तो बहुत आसान है, पाप करने की टेंडेंसीज और जो इच्छा से मुक्त होना,
वो हमको शुद्ध भक्ति ही कर सकती है। और लाइक मृगारी का एक एग्जाम्पल है, जो मृगारी जानवरों को अधमरा करके, उसको बहुत मजा आता था, खुशी होती थी। सेम मृगारी जब शुद्ध भक्त के टच में आए नारद मुनि के, उसके बाद जब पर्वत मुनि के साथ आए थे ना नारद मुनि, तो देखा व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन, कि फिर वो एक चींटी, उनको दंडवत करना था मृगारी को, तो चींटियां थी, तो ही वॉज नॉट एबल टू प्रॉपरली दंडवत, क्योंकि लगा था चींटी रहेगी वो मर जाएगी, उसको हार्म हो जाएगा। तो भक्त जो होता है, इवन इट डू नॉट लाइक टू इवन हार्म इवन एंड। अब ना प्रभुपाद जी बोले हु आर एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड हेड, कृष्ण को बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ऑल अदर लिविंग एंड क्रिएचर्स इंक्लूडिंग डेमिगॉड्स आर born of Brahma. Brahma is born of Lord Vishnu. Krishna states in Bhagavad Gita, प्रभुपाद जी श्लोक कोट कर रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभव। Lord Vishnu is the origin of all manifestation in the material world. Those who know that, Prabhupada ji, this statement, those who know that Lord Vishnu is the origin of everything, who are conversant with the process of creation and who understand that Vishnu or Krishna is the most worshipable object of all living entity, engages themselves in Vishnu versus the Vaishnava and very much eligible to go back to Godhead. तो जब तक ना, इसलिए बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। भाव मीन्स with love and affection. So प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, जब हमको पता ओरिजिन, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ब्रिंग ऑटोमेटिकली लव एंड अफेक्शन, एटलीस्ट इन मटेरियल लेवल पे। वाई द चिल्ड्रन हैव लव एंड अफेक्शन फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज दे नो कि दे आर आवर ओरिजिन। कहीं ना कहीं से इंटीमेसी आती है व्हेन वी नो ओरिजिन। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लेक्चर में, नाउ आई हैव कम टू योर कंट्री, समझ आई एम इंडियन, तो हमारा थोड़ा सा लगता है ना, अच्छा किसी स्टेट से भी होते हैं, अच्छा आप वहीं से जहाँ से हमें, तो जो ओरिजिन है, जो हमारा जो है, इट ब्रिंग्स सम काइंड ऑफ इंटीमेसी एंड काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो so if we have to love everything, and so if we know Krishna is our origin too, जो यहाँ पे तो फादर मदर तो बॉडी है, तो आत्मा का जो ओरिजिन है वो तो भगवान ही से। So when we know that Krishna is our real father and also mother, Krishna माता, Krishna माता, कृष्णा पिता, कृष्णा धन प्राण। See, the father is the mother, everything. Then automatically you know Krishna is a real father mother. If you leave, then you automatically, but still you carry. You can never forget your father mother. So when we develop that kind of, when we know that, then actually if you know Krishna is Father's mind, and Krishna father of everyone, every jiva, including the insect, then actually you will not like to harm any, even a lower creature. Like चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं ना, जो वासुदेव विप्र थे, ब्राह्मण थे, चैतन्य महाप्रभु उनको कोल्ड रहता है, साउथ इंडियन जब यात्रा में मिलते हैं उनसे, कोल्ड रहता तो उनके शरीर में कीड़े हो जाते हैं। कीड़ा गिर जाता था तो क्या कर देते वो, कीड़े को उठा के फिर से अपने शरीर में रख देते।
is all different degree of so it's lot of we can make out, but still जो भक्त का होता है उनका ना प्रहलाद महाराज बोले, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट माई सेल्फ, आई कंसर्न दिस फूल्स एंड रास्कल, हाउ आई कैन हेल्प देम. So the Vedic hymns also confirms this. Om Tad Vishnu Paramam Padam. The goal of life is to understand Vishnu. Bhagavatam also confirms elsewhere. So लोगों को पता नहीं है, and instead of worshiping Krishna, they are start worshiping all useless and foolish people. So Prabhupada said this knowledge has to be हमको दूसरों तक पहुंचाना है, and so that they can get benefited, and that's a real service to Krishna. At least जन्म सार्थक कर, then कर परोपकार कर. So if they know that their origin is Krishna, automatically their love and affection come towards the Lord. And if they know, every one of us, in one sense, we have a real universal brotherhood. Prabhupada, when you come to the spiritual platform, no, Krishna is Father and we are all, so we are all, and that's a real universal brotherhood, and the true brotherhood will come. Otherwise, everything will fall. So there are a lot of good points, but anyway, time is up now. So we all can go through, and when we understand as a context by the fully, then when this knowledge can cleanse our heart, and we can develop some hankering, craving to go back to Krishna Loka and serve Krishna in wholehearted. So I'll stop it. Grintaraj Srimad Bhagavatam ki Jagat Guru Prabhupada ki Jai Go Prem Nande Hari Hari.